Hello friends, in the last class we have dealt about capacitors with dielectrics. We have found that how the different parameters of the capacitors vary when dielectric is inserted between the capacitor plates. We have found what is the force experienced by the dielectric in the capacitor. Extending to that, now I am talking about very general topic and very general thing, that is the Kirchhoff's law applied in capacitors. How do we use Kirchhoff's law in capacitor circuit? That's the very general and very important thing, to find the charges and potential difference of each and every sort of capacitors in the circuit. Let us try to understand. First, Kirchhoff's law in capacitors. We are supposed to deal with the circuit. It will help us a lot. Now let us suppose we have one circuit like this is the circuit. We are required to find the charge on each and every capacitor. Suppose this is E1, this is C1, this is C1, C2, this is E2, C3, C4, C5. We are required to find the charge allocated on each of the capacitors. It is not that much easy that we see. By applying Kirchhoff's law, it will become very easy and we will be comfortable in dealing with the thing. Not only the charge, we can find the potential difference across each capacitor. How we apply the thing? First is called conservation of charge. Conservation of charge. For this, we are required to say, we are required to identify isolated region. IR by considering cells to be the continuous part of the circuit and capacitors to be discontinuous of the circuit. Now let's keep it. So here in this circuit, how many isolated regions are there? What I am writing, try to understand. Isolated region by considering continuous part, cells to be continuous part and capacitors to be discontinuous part. मतलब जहां कैपेसिटर है वहां जो पाथ है वो आइसोलेटेड रीजन है. यहां से हम लोग अगर आइसोलेटेड रीजन देखते हैं, इफ वी वांट टू सी द आइसोलेटेड रीजन in this region or in this circuit, we can find we have first C1, C2,
Second, C1, C5, C4. Third, C3, C4. Fourth, C2, C3, C5. और कोई हो सकता है क्या? देखो, एक आइसोलेटेड रीजन ये डिसकंटिन्यूअस रीजन, एक आइसोलेटेड रीजन ये डिसकंटिन्यूअस रीजन C1, C5, C4, एक ये C4, C3, C4 और एक ये C2, C3, C5. वी हैव 4 आइसोलेटेड रीजन्स. आप ये देखिए, इसको देख के और इसको देख के अगर यहां से करेंगे समझ में अच्छी आएगी हम आइसोलेटेड रीजन क्या होता है और कैसे हम लोग निकालते हैं. ठीक है, कैन आई प्रोसीड? फाइन. सेकेंड वी सी द बी पार्ट. कैन आई रब दिस? Second is the total charge in the isolated region is 0. So that the conservation of charge is applied. Total charge in the isolated regions is 0. Fine. For making the charge to be 0, what we do? We allocate the charge rationally so that the net charge in the isolated region is 0. For this, we allocate the charge on each capacitor rationally so that the net charge in the isolated region is 0. Now, can I rub? और यहां से हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं ये E1 है, यहां पे चार्ज आ जाएगा Q1. ये दोनों सीरीज में है, यहां भी चार्ज आ जाएगा Q1. कोई दिक्कत? यहां से E2 है, यहां चार्ज आ गया Q2, यहां भी चार्ज आ गया Q2, यहां चार्ज क्या आ गया? Q1 प्लस Q2, है ना? इसमें कोई दिक्कत? क्योंकि सीरीज में है तो चार्ज विल रिमेन द सेम. ये दोनों सीरीज में है, चार्ज विल रिमेन द सेम. हम लोग का चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, इधर से फ्लो कर रहा है. Q2 आके यहां जा रहा है, Q1 आके यहां जा रहा है. दिस इज Q1 प्लस Q2. और टू मेक द चार्ज इन द आइसोलेटेड रीजन 0, इट इज Q1 प्लस Q2. दूसरी बात है, ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा. है क्या? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत बाबू? बोलो. हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए. फाइन. अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर इस तरह से हम लोग काम करते हैं, क्या ना? तो सी पार्ट भी एक चीज लिख लेते हैं हम लोग. द कैपेसिटर प्लेट्स have equivalent opposite charges.
ये प्लस क्यू है तो ये प्लस क्यू वन है तो ये माइनस क्यू वन है, ये प्लस क्यू वन है ये माइनस, इक्वल एंड अपोजिट, ये प्लस क्यू टू है ये माइनस क्यू टू है। और दिस वे जो भी प्लेट्स है एक कैपेसिटर का प्लस और माइनस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। फाइन, अब देखिए जब यहां तक बात समझ में आ गई है तो लेट अस डील विद सम साइन कन्वेंशन। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक है तो बोलो। These things you will not get everywhere. Openly I am saying. Try to understand this. This is so important and so vigorous. And it is basically, you can say, the very sophisticated and very lucid tool to find charges on each of the capacitors. कैसे भी हो, कहीं भी हो, किसी भी कैपेसिटर प्लेट पे आपको क्या चार्ज है ये निकालने के लिए आराम से निकलेगा इससे। ये लॉ इतना ज्यादा यूनिवर्सल है। नाउ लेट अस डील विद द साइन कन्वेंशन। बाबू कुछ कीजिएगा नहीं कीजिएगा, साइन कन्वेंशन कभी भी चेंज नहीं कीजिएगा, ध्यान रहे इस चीज का। एक बार यूज कीजिए, इट्स अ कन्वेंशन, इट्स नॉट अ लॉ। जो आप यूज करते हैं दूसरा आदमी ठीक उसका उल्टा यूज करेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन आपको एक तरह से साइन कन्वेंशन यूज करने की आदत होनी चाहिए ताकि आपको बार बार दिमाग ना लगाना पड़े कि कहां पॉजिटिव लेना है और कहां निगेटिव लेना है। इस चीज का सदा ध्यान, ऑटोमेटिक आ जाएगा कि यहां पॉजिटिव होगा, यहां निगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव होगा। ऑटोमेटिक, आपको एक्स्ट्रा लेवल करने की जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट, बैटरी और सेल डू नॉट सप्लाई any charge, but it allows the charge to flow in the circuit. That should be kept in mind. If we move in the circuit from negative to positive terminal, inside the cell, the EMF is taken as negative. Mind the word negative to positive terminal, inside is negative. हम लोग जैसे यहां से अगर इधर मूव कर रहे हैं, चार्ज यदि हम लोग इधर फ्लो करवा रहे हैं, इधर फ्लो कर रहे हैं, तो दिस E विल बी नेगेटिव। नाउ द थर्ड पॉइंट इज if we move in the circuit from positive to negative terminal,
inside the cell, the EMF is taken as positive. Again, I am forcing positive to negative. Inside is positive. Positive to negative. Inside is positive. And negative to positive. Inside is negative. हमको इनसाइड द सेल को ज्यादा फोकस करना है ईएमएफ को पॉजिटिव या नेगेटिव लेने के लिए. इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा. फाइन. अगर इसको हम लोग अप्लाई करते हैं यस बच्चों, सेकेंड लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी को डील करता है. मीन्स द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज 0. मेरे कहने का मतलब है द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस in a closed loop is 0. That should be keep in mind. We have V is equal to Q by C. इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा, है ना. Now let us apply these two rules here in this circuit. अगर इस सर्किट पे हम लोग इसको यूज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा राइट. हम लोग लिखे हैं क्योंकि यहां E1 है, यहां Q1 E2 है, इसलिए Q2 और दिस इज टू मेक द चार्ज इन द आइसोलेटेड रीजन 0. इट इज Q1 प्लस Q2. ये पॉजिटिव नेगेटिव इसको ठीक से समझना है. ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसलिए ये पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट वाला इसका नेगेटिव होगा. ये नेगेटिव है तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव. ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसलिए पॉजिटिव. ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसलिए नेगेटिव. इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा. अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा ठीक इक्वल एंड अपोजिट होगा. ये हम लोग देख चुके हैं. सपोज दिस इज लूप 1 एंड दिस इज लूप 2. In loop 1, बच्चों एक चीज सदा ध्यान रखना, ये कन्वेंशन है और कुछ नहीं है. इससे क्या होता है, गलतियां थोड़ी कम हो जाती है. अगर किसी लूप में बैटरी कनेक्टेड है, स्टार्ट विद द बैटरी. आप कहीं से भी करो सब सही है, लेकिन इससे थोड़ी गलतियां कम हो जाएगी और लिखने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी. इस चीज को समझिए. अगर बैटरी कनेक्टेड है किसी भी लूप में तो हमको बैटरी से स्टार्ट करना है. यहां देखिए हम लोग इस तरह से मूव कर रहे हैं. यहां पर E1 इज द बैटरी कनेक्टेड. अगर हम लोग इस तरह से मूव कर रहे हैं तो बैटरी में हम लोग इनसाइड द बैटरी नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे हैं. यस और नो? यू कैन सी हियर. Inside the battery, it is negative to positive, so it is minus E1. It is plus Q1 by C1 plus Q1 by C2 plus Q1 plus Q2 by C5 इक्वल टू 0. हम लोग लिख सकते हैं क्या ऐसा? देखिए माइनस E1 माइनस से प्लस जा रहे हैं इनसाइड द बैटरी प्लस Q1
बाय C1 प्लस Q1 बाय C2, दोनों सीरीज में है, चार्ज दोनों में बराबर होगा। इसके बाद यहां घूम रहे हैं, यहां प्लस Q1 प्लस Q2 बाय C1 है, C5 इक्वल टू 0। यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं Q1 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C5 प्लस Q2 बाय C5 इक्वल टू E1। बच्चों अगर समझ में नहीं आया तो फील फ्री टू से, एकदम हेजिटेट नहीं करने का है, एकदम से हेजिटेट नहीं करना है। अब बताइए कहां दिक्कत हो रही है। हमको, मेरा टारगेट है Q1 और Q2 निकालना। एक बार Q1 Q2 निकल गया, अब देखो सारे कैपेसिटर पे क्या चार्ज होगा वो मेरा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइन, हमारे पास दो वेरिएबल है Q1 और Q2 और हमको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। अगर दो इक्वेशन चाहिए तो लेट अस मूव फॉर लूप नंबर 2। मैंने कहा अगर सेल कनेक्टेड है किसी भी लूप में तो स्टार्ट विद द सेल। यहां पर देखिए, माइनस E2 प्लस Q2 बाय C3 प्लस Q1 प्लस Q2 बाय C5 प्लस Q2 बाय C4 इक्वल टू 0। हम लोग देख रहे हैं और Q1 1 बाय C5 प्लस Q2 1 बाय C3 प्लस 1 बाय C4 प्लस 1 बाय C5 इज इक्वल टू E2 होगा क्या? होगा नहीं होगा? We have two variables Q1 and Q2. We have two equations 1 and 2. C1, C2, C3, C4, C5, E1, E2 इस सब का वैल्यू आपको पता है। It is known to us. तो जो वेरिएबल पता नहीं है वो केवल दो है, Q1 और Q2। अगर Q1 Q2 हमको पता चल जाता है इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आराम से सोल्व होगा। और इन दोनों को यदि मैं सोल्व करके निकाल लेता हूं Q1 और Q2 तो सारा वैल्यू निकल गया ना। अगर सारा वैल्यू निकल गया हर एक कैपेसिटर पे, तो हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल निकल गया, हर एक कैपेसिटर पे आपका चार्ज निकल गया इजीली। और क्या चाहिए आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दिस इज द यूटिलिटी ऑफ किरचॉफ।